हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है सारे जने ठीक होंगे। हाँ जी, स्वागत हो रहा नैक्सट लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਯੰਗਸ ਡਬਲ ਸਲਿਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫॉर ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਐਂਡ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ 6F ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। दैट इज़ एक्सप्रैशन फॉर द फ्रिंज विड्थ। जी आप शब्द बार बार तुहानूं कल फ्रिंज समझाया सी मैंने कि फ्रिंज की होंदी है, डार्क एंड ब्राइट जिहड़े पैटर्न बन जाते हैं स्क्रीन के उपर इंटरफेरेंस करके उन्होंने फ्रिंजिज कहा सी। हुण वो डार्क या जिहड़े ब्राइट पैटर्न बनते हैं उन्हां दी विड्थ कितनी होंदी है, चौड़ाई कितनी होंदी है, वो अज अपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आर्टिकल अपने को हैगा एक्सप्रैशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ इन द इंटरफेरेंस पैटर्न और द थ्योरी ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट। ਹੁਣ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, A ਐਂਡ B ਆਰ ਦਾ ਟੂ ਫਾਈਨ ਸਲਿਟ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਯੰਗ ਡਬਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋ ਸਲਿਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ 0.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 'ਤੇ ਨੇ ਉਹ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ D ਉਹਨੂੰ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੈਟ ਦੈਮ ਇਲੂਮੀਨੇਟਡ ਬਾਈ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਸੋਰਸ ਆਫ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਲਾਈਟ। ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੈਮੜਾ। MN ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ ਸਲਿਟਸ 'ਤੇ, ਕੈਪੀਟਲ D ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਲਿਟਸ ਤੋਂ। ਦੋ ਵੇਵ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਲਿਟ A ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਲਿਟ B ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ MN ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਪਈ ਹੈ ਸਲਿਟਸ ਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, A ਅਤੇ B ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਿਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ O। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਰਾ A ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਤਾ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ B ਤੋਂ F ਡਰਾ ਕਰਤਾ। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पॉइंट ऑन द स्क्रीन विल डिपेंड अपॉन द पाथ डिफरेंस। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਫਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਰਕ ਬਣੂਗਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਬਰਾਈਟ ਬਣੂਗਾ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, P ਹੈ, E ਹੈ, C ਹੈ, F ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਡਾਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਬਰਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ A ਅਤੇ B ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੇਵਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਤਾਂ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ N ਲੈਂਬੜਾ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਬਣਦਾ 2n-1 ਲੈਂਬੜਾ ਬਾਈ 2 ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ। ਜਾਂ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ 2n ਪਾਈ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ, ਅਤੇ ਜੇ ਹੈਗਾ ਸੀ 2n-1 ਪਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ। ਤਾਂ ਆਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਦੇਖੋ A ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇ P 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ B ਤੋਂ P 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਾਂ, ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਆਹ ਐਕਸਟਰਾ ਇੰਨਾ ਮੂਵ ਕੀਤਾ B ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਗਈ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮੂਵ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਬੜਾ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ 1 ਲੈਂਬੜਾ ਹੋਵੇ, 2 ਹੋਵੇ, 3 ਹੋਵੇ, 4 ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋ ਜੂਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਈਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਇਆ ਲੈਂਬੜਾ ਬਾਈ 2 ਦਾ ਤਾਂ 2n-1 ਲੈਂਬੜਾ ਬਾਈ 2 ਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜੂਗੀ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਰਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ P ਔਨ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਵਿਲ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਦਾ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਟੂ ਵੇਵ ਅਰਾਈਵਿੰਗ ਐਟ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ C ਔਨ ਦਾ ਸਕਰੀਨ, ਹੁਣ C ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਾਂ A ਤੋਂ C 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਵੇਵ ਅਤੇ B ਤੋਂ C 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਵੇਵ ਬਰਾਬਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, A ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, O ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। O ਕੀ ਹੈ, A ਅਤੇ B ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਤਾਂ O ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ C ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ A ਤੋਂ C ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ B ਤੋਂ C ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਕਸੀਮਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਾ ਬਣੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪੀ, ਆਹ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੀ ਤੋਂ ਐਕਸ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਲਿਟਸ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਦੋ, ਏ ਤੇ ਬੀ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਕਰੀਨ ਰੱਖ ਲਈ। ਆ ਸਲਿਟ ਏ ਹੈ, ਇਹ ਸਲਿਟ ਬੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, O ਹੈ। ਏ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਖਿੱਚਿਆ AE ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ MN ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਨਾਮ। B ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਖਿੱਚਿਆ BF, O ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ C। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ A ਤੋਂ C ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ B ਤੋਂ C ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ। ਤਾਂ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਨਿਆ, ਦੋਨੇ ਸਲਿਟਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸਮਾਲ d ਮੰਨਿਆ। ਆਹ ਸਕਰੀਨ ਅਤੇ ਸਲਿਟਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ D ਮੰਨਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ P ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, P ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਇਹ P ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ C ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, X ਹੈ। C ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ X ਹੈ। ਤਾਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, E ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਹ ਟੋਟਲ X ਹੈ। ਆਹ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, D/2, ਕਿਉਂਕਿ O ਤੋਂ A ਤੋਂ B ਦੀ D ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ X ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ D/2 ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ X - D/2। ਮਤਲਬ E ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ P ਤੇ E ਦੀ, ਉਹ X - D/2 ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂ F ਤੋਂ, ਜੇ ਉੱਪਰ D/2 ਸੀ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਤਾਂ D/2 ਹੀ ਹੋਊ, ਨਿਚਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ। ਇੱਥੋਂ X ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ F ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊ, X + D/2। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ P ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੇ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ A ਤੋਂ P 'ਤੇ, ਇੱਕ ਜਾਊਗੀ B ਤੋਂ P 'ਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇੰਨਾ ਐਕਸਟਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ B ਤੋਂ P ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ ਇੰਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਹਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ, ਲੈਂਬੜਾ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ ਜਾਂ λ/2 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਲਈ BPF, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ BP ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿੰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਮ ਦੇਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ two waves reaching at P from A and B ਬਰਾਬਰ ਹੈ B ਤੋਂ P ਕਿੰਨਾ ਗਈ ਰੇ, -A ਤੋਂ P ਕਿੰਨਾ ਗਈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਘਟਾਤਾ ਤਾਂ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ BP ਕੱਢਣਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ AB ਕੱਢਣਾ। BP ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਲਈ BPF। ਹੁਣ BP ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਸਕੇਅਰ = ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਅਤੇ ਬੇਸ ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ PF ਸਕੇਅਰ, ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ BF ਸਕੇਅਰ। BP ਸਕੇਅਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ BF ਸਕੇਅਰ + PF ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। BF ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, D ਹੈ। PF ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, X + D/2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ। BP ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ BP ਚਾਹੀਦਾ, ਸਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ √1/2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, D ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ, D ਸਕੇਅਰ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ D ਸਕੇਅਰ ਕਾਮਨ ਕੱਢੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 1/2। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ X + D/2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਬਟਾ D ਸਕੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ D ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ D ਇਕੱਲਾ।
1 प्लस एक्स प्लस डी बाय 2 इत्थे पावर 1/2 है स्केयर बटा डी स्केयर दी पावर 1/2। उम्मीद है तुहानूं इस तक समझ आ गया। ठीक है, इस तो बाद सिमिलरली ट्रायंगल लवां किहड़ी हुण ए पी एफ आ वाली ए पी ते ई सॉरी नॉट एफ ई। इत्थों आपां कड्ढना है हुण ए पी, तो पहलां ए पी स्केयर इज इक्वल टू होगा ए ई स्केयर प्लस पी ई स्केयर। ए ई स्केयर कितना हुई है आ डिफरेंस डी, पी ई कितना है मैं तुहानूं पहलां दस चुक्या एक्स माइनस डी बाय 2 दा स्केयर। चाहिदा की है मैनूं कल्ला ए पी, तो यह डी स्केयर प्लस एक्स माइनस डी बाय 2 दा स्केयर दा अंडरूट, क्योंकि स्केयर परले पासे जाके अंडरूट बन जाता है। डी स्केयर साझा कढ़ लिया, उपर पावर 1/2 है, इत्थे 1 रह गया, एक्स माइनस डी बाय 2 दा स्केयर अपॉन डी स्केयर दी पावर 1/2 यह कट गया आपस की रह गया डी 1 प्लस एक्स माइनस डी बाय 2 स्केयर अपॉन डी स्केयर दी पावर 1/2। हुण मेरे को ए पी भी आ गया, मेरे को बी पी भी आ गया। मैं की करूँगा इन इस दे विच वैल्यू पुट कर दूँगा ए पी ते बी पी दी। जो मैं वैल्यू पुट करूँगा तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू बी पी कितना जी डी 1 प्लस एक्स प्लस डी बाय 2 स्केयर अपॉन डी स्केयर दी पावर 1/2 माइनस डी 1 प्लस एक्स माइनस डी बाय 2 स्केयर अपॉन डी स्केयर दी पावर 1/2। हुण दोहां च डी कॉमन है, डी बाहर आ गया 1 प्लस एक्स प्लस डी बाय 2 स्केयर अपॉन डी स्केयर 1/2 माइनस है 1 प्लस एक्स माइनस डी बाय 2 स्केयर डी स्केयर पावर 1/2। हुण उस तो बाद की है एक तुहानूं याद होऊगा आपां बाइनोमीअल थ्योरम +1 च भी कीती सी, गल कर चुके हैं बारे आपां +1 च बाइनोमीअल थ्योरम हुंदी है एक। बाइनोमीअल थ्योरम च की हुंदा है याद करो 1 प्लस एक्स दी पावर n तैनूं सॉल्व करन दा तरीका दस्सिया सी मैंने 1 प्लस आ पावर इंटू आ जो सैकेंड वाला इत्थे पर बाइनोमीअल की शर्त ये होंदी है भी इत्थे 1 होना चाहिए। इस करके अपने इत्थे डी की करिया सीगा साझा कढ़िया सीगा 1 बनाने वास्ते एन एक्स अपॉन 1 फैक्टोरीयल सैकेंड होंदा फिर एन माइनस 1 जिन्नी भी पावर है वो तो 1 घट एक्स स्केयर अपॉन 2 फैक्टोरीयल तुसीं मैथ च पढ़िया होगा एन फिर एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरीयल नाल एक्स दी 3 ये एज इट इज चलता जाता है। वो डिपेंड करता एन की वैल्यू पर भी तुसीं एन की वैल्यू कितनी है वो अकॉर्डिंग किन्नियां टर्म बननगियां। जिन्नी एन की वैल्यू ज़्यादा होगी उन्नियां टर्म दे विच ज़्यादा बन जाणगियां। पर आपां सिर्फ की लेनियां होंदियां ने पहलियां 2 टर्म्स। इस तरह नूं सॉल्व करने वास्ते आपां सिर्फ पहलियां 2 टर्म की वरतों करांगे तो अपने कोले पाथ डिफरेंस जिहड़ा हैगा पाथ डिफरेंस वो कितना बन गया जी डी साझा सीगा कुंडी दा ब्रैकेट स्केयर ब्रैकेट इत्थे सीगा देखो 1 प्लस ये सारा एक्स हो गया दी पावर एन कितना 1/2 तो अपने को आ जाऊगा 1 प्लस एन एक्स तो एन की है 1 प्लस एन 1/2 एक्स की सीगा एक्स प्लस d/2 दा स्केयर अपॉन डी स्केयर ये हो गया जी। सिमिलरली दूजे नूं सॉल्व कर लो ठीक है तो 1 प्लस 1/2 एक्स माइनस d/2 दा स्केयर अपॉन डी स्केयर ये हुण उपरों 1/2 वाली पावर की होगी हुण खत्म होगी जो पहला ब्रैकटां दे उपर 1/2 पावर सी। हुण ये ब्रैकटां खोल दो इत्थे कुंडी दा ब्रैकट है जो ब्रैकट खोलांगे तो की होगा देखो 1 प्लस 1/2 एक्स प्लस d/2 दा स्केयर अपॉन डी स्केयर माइनस 1/2 एक्स माइनस d/2 दा स्केयर अपॉन डी स्केयर 1 नाल 1 हो गया कैंसल। हुण जे आपां इहनूं खोलीए हुण कुंडी दा ब्रैकट पाउण दी लोड़ नहीं क्योंकि अंदरली ब्रैकट्स खत्म हो गई। हुण इत्थों 1/2 भी कॉमन है ठीक है जी
तो नाल अपने को डी स्केयर भी कॉमन है। आ खत्म करने तो बाद 2d स्केयर नीचे है, 2d स्केयर नीचे है, ये कॉमन आ गए। अपने को की बच गया x प्लस डी बाय 2 स्केयर माइनस x माइनस डी बाय 2 स्केयर। हुण जो आप इनू खोलांगे, आप इस तरह बहुत बारी कर चुके, ये बनूगा a प्लस बी का होल स्केयर, a माइनस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर वाली टर्म आपस कैंसल हो जाएगी। इत्थे जो 2ab बचा माइनस माइनस 2ab बचा, तो माइनस माइनस हो जाएगी प्लस, तो साढ़े को बचूगा आ डी उपर सी नीचे डी स्केयर सी, तो एक डी कैंसल हो गया, तो 1/2d। इत्थे की बच गया 2ab इंटू प्लस 2ab, तो बन गया साढ़े को 4ab 4ab। तो आ 2 नाल 1 कैंसल हो गया, आ वाले 2 नाल आ वाला 2 कैंसल हो गया, तो मेरे को लास्ट रिजल्ट की बच गया XD/D। तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया XD/D, पाथ डिफरेंस आ गया XD/D। हुण थोड़ा जिहा दोबारा फिर मैं एक बार समझा रहा थोनू, क्योंकि आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आप कर रहे सी कि अपने फ्रिंज विड्थ फाइंड करनी है, तो वो वास्ते अपने एक सैटअप लगाया है, 2 स्लिट्स ने A एंड B, वो सामने एक स्क्रीन है, A तो B के सेंटर पॉइंट O है, A B विचाले दूरी जी हैगी आ वो स्मॉल d है, स्क्रीन की दूरी कैपिटल D है, C का सेंटर पॉइंट है, C तो एक P पॉइंट दूर लिया अपने X दूरी ते, तो P तो E की दूरी ए D/2 होने करके x माइनस D/2 होगी, P तो F की दूरी x प्लस D/2 होगी। इत्थे आप गल कर रहे हैं इंटरफेरेंस की। मैं तुहानूं पहलां दस चुका इंटरफेरेंस नाल की हुंदा कि सामने साडे कोल स्क्रीन के उपर डार्क ते ब्राइट फ्रिंजिस बनदियां ने। हुण किस जगह के उपर डार्क बनू या किस जगह के उपर ब्राइट बनू, वो डिपेंड करता है उस पॉइंट के उपर जिहड़ियां वेव्स जा रही ने 2 स्लिट्स तो, जिवें A तो एक वेव गई है, एक B तो की है, उत्थे जिहड़ियां वेव्स जा रही ने वो जिहड़ा उन्हां दे विचाले जिहड़ा रस्ते का फर्क है वो किन्ना है, वो 0 है ਜਾਂ n लैमड़ा है, ਜਾਂ जिवें ਆਪਾਂ कल कीता सी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वास्ते जे डिफरेंस n लैमड़ा का मल्टीपल है, ठीक है, तो साडे कोल कंस्ट्रक्टिव होगी, जे 2n माइनस 1 λ/2 का मल्टीपल है तो डिस्ट्रक्टिव होगी। तो अपने पाथ डिफरेंस ही कढ़ना सी इत्थे मेन, तो मैंने कढ़ना की है पाथ डिफरेंस की होगा BP दे विचों AP घटा के निकल जूगा। तो मैंने BP कढ़न वास्ते की ट्रैंगल ले ली, BPF ट्रैंगल ले ली, तो वो PF स्केयर प्लस BF स्केयर, PF की वैल्यू हैगी है D, BF की वैल्यू आप पहला कट चुके सॉरी BF की वैल्यू हैगी D, PF की वैल्यू आप कट चुके x प्लस D/2, D स्केयर अपने कॉमन कढ़ लिया, उपर अनरूट सीगा तो कला D रह गया। सिमिलरली अपने APE ट्रैंगल ले ली, वो अपने उवें कर लिया, वैल्यूज पुट करती D कॉमन आ गया। आ जी 1/2 वाले जो पावर सी इनू सॉल्व करने वास्ते आप बाइनोमियल थ्योरम जो +1 की मैथ की थ्योरम है उन्होंने आप यूज किया, वो की होंगे 1 प्लस x की पावर n होंगे, तो आप सिर्फ पहलियां 2 टर्म यूज करते होंगे 1 प्लस n(x)(1 फैक्टोरीयल, 1 फैक्टोरीयल मतलब 1 ही होंगे। तो जो अपने सॉल्व कर लिया तो 1 प्लस n की है 1/2, x जो पिछली टर्म है लास्ट टर्म है खोलती, ब्रैकेट ओपन करती, एक नाल एक कैंसल हो गया, नीचे 2d स्केयर सी वो साझा आ गया, उपर 1d पहले ही बाहर मौजूद है, तो 1d नाल 1d कैंसल हो गया। जो अंदर आ बच गया अपने को x प्लस D/2 का स्केयर माइनस x माइनस D/2 का स्केयर, जो तुम इन्हू ओपन करोगे A प्लस B का होल स्केयर, A माइनस B का होल स्केयर लगा के, तो साढ़े को जी टर्म बचूगी 2ab यदा बच जूगा, माइनस माइनस फोन करके प्लस 2ab बचूगा, तो 2ab हो गया 4ab, 4a की है x, b की है D/2, ठीक है, 2 किसी का नीचे 2 आ सीगा, 2 नाल 2 गुणा 2 4, 4 नाल 4 कट गया, XD उपर बच गया, नीचे कैपिटल D बच गया अपने को। तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू जी मेरे को आ गई XD/D आ गई जी। सो हुण नाउ द इंटेंसिटी एट P इज़ मैक्सीमा और मिनीमा। हुण मैं कल फिर वही गल भी इत्थे हुण मैक्सीमा बनूगा या मिनीमा बनूगा, वो डिपेंड करता है कि जो साडा ये पाथ डिफरेंस है वो इंटैग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है n लैमड़ा, ਜਾਂ ਔਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ ਹਾਫ ਵੇਵ ਲੈਂਥ 2n ਮਾਈਨਸ 1 λ/2 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਤਾਂ 4 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 4 ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਰਿੰਜਿਸ, 4 ਬ੍ਰਾਈਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ, ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਰਿੰਜਿਸ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
जो पाथ डिफरेंस है किन्ना एक्स डी अपॉन डी जी वैल्यू आप कढ़ ली किन्ना होना चाहिए एन लैंबड़ा होना चाहिए यानी कि एक्स की वैल्यू किन्नी होनी चाहिए है ये बाकी सारा परले पासले जो एन लैंबड़ा डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है जी। तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग सानू पता लग जू भी किहड़ी जगह ते हुण एक्स की सीगा याद करो एक्स की सी अपने कोले एक्स सी पी की दूरी सेंटर तो पी की दूरी मतलब जे मैं सेंटर तो पी की दूरी तो ही ये अंदाज़ा लगा दूंगा कि उस पॉइंट के उपर मैक्सीमा बनूगा या मिनीमा बनूगा। ठीक है एक्स की वैल्यू चेंज होती रहूगी तो अपने देखनी है अकॉर्डिंग तो जे एन की वैल्यू आप जीरो भर देंगे फॉर एन इज इक्वल टू जीरो एन जीरो भरोगे तो की बन जूगा एक्स जीरो आप पैर च लिखी जावांगे इत्थे। ठीक है तो ये की हो जूगा सारा जीरो मतलब सेंटर च की बनूगा मेरे को एक्स जीरो मतलब हुण एक्स जीरो कदों होऊ यानी कि पी पॉइंट कित्थे है सी दे उपर है एक्स जीरो का मतलब पी पॉइंट सी दे उपर ही है। ठीक है तो सी दे उपर पहला गल कर चुके कि सी पॉइंट ए तो बी तो बराबर दूरी ते है इत्थे कोई पाथ डिफरेंस नहीं गा तो इत्थे की बनता है मैक्सीमा तो इत्थे बनता है सेंट्रल मैक्सीमा जे होवे एन बराबर एक तो एक्स एक की होगा एक लैंबड़ा डी अपॉन डी यानी कि लैंबड़ा डी अपॉन डी इत्थे की बनूगा फस्ट ब्राइट फ्रिंज दूजी कित्थे बनूगी एन बराबर दो ते एक्स टू लैंबड़ा डी अपॉन डी इस जगह ते बनूगी सैकेंड ब्राइट फ्रिंज। तीजी कित्थे बनूगी एक्स तीन लैंबड़ा डी अपॉन स्मॉल डी थर्ड ब्राइट फ्रिंज एंड सो ऑन। इस तरीके नाल सानूं पता लग जू भी किन्नी दूरी ते साडी की बनूगी ब्राइट फ्रिंज बनूगी सेंटर तो दूरी है ये सेंटर तो किन्नी दूरी ते ब्राइट बननगियां। जे अपने की चैक करना है डार्क चैक करना हुण डार्क फ्रिंज चैक करनी है तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए कल वाले आर्टिकल तो जिन्हें कल वाला पढ़िया होगा वो एक्स डी अपॉन डी होना चाहिए कितना 2n-1 लैंबड़ा बाय 2 इन्ना होना चाहिए तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2n-1 लैंबड़ा डी अपॉन 2d ये साढ़े को आ गई जी। इतों अपने इनू परले पासे जाके ले गए ये उपर जाके मल्टीप्लाई हो जाऊगा नीचे आके डिवाइड हो जाऊगा। पहला हुण एन की वैल्यू आप याद करो कल ब्राइट वास्ते कंस्ट्रक्टिव वास्ते एन की वैल्यू आप कल जीरो तो शुरू की सी याद होगा थोनों क्योंकि एक्स की वैल्यू कॉस फाइव की वैल्यू जी हैगी जीरो तो 1 होंगी है तो आप जीरो शुरू की सी तो ये वास्ते डिस्ट्रक्टिव वास्ते एन की वैल्यू शुरुआत हुई सी 1 तो जो एन 1 होवे फॉर एन इज इक्वल टू 1 एक्स 1 कित्थे आऊगा हुण 2 गुणा 1 माइनस 1 लैंबड़ा डी अपॉन 2d तो 2 गुणा 1 2 माइनस 1 लैंबड़ा डी अपॉन 2d तो इस जगह ते बनूगा साडा फस्ट डार्क फ्रिंज इन्नी दूरी ते। ठीक है हुण मैनू लैंबड़ा भी पता है क्योंकि मैं किहड़ी लाइट यूज़ कर रहा वो मैनू पता है आ डी दूरी मैनू स्क्रीन की दूरी स्लिट्स तो पता है आ स्लिट्स के विचकार की दूरी ये भी मैनू पता है तो मैं कैलकुलेट कर लूँगा विदाउट एक्सपैरीमेंट कि कितनी दूरी के उपर की बनूगी पहली डार्क फ्रिंज बनूगी एन बराबर 2 तो दूजा कित्थे बनूगा जी 2 गुणा 2 माइनस 1 लैंबड़ा डी अपॉन 2d ये बन गया 2 गुणा 2 4 माइनस 1 3 लैंबड़ा डी अपॉन 2d इत्थे बनूगी सैकेंड फिर एन बराबर है 3 एक्स 3 तो बनूगी 5 लैंबड़ा डी अपॉन 2d इत्थे बनूगी थर्ड। तो इस तरीके नाल असीं फाइंड कर सकते हैं किन्नी पोजीशन के उपर डार्क बन गई। हुण अपना आर्टिकल की सीगा आर्टिकल सी अपना फ्रिंज विड्थ पता करना अपने हाल तक पोजीशन पता की है भी किहड़ी पोजीशन के उपर की बनूगी ब्राइट या डार्क बनूगी अपना मेन आर्टिकल है फ्रिंज की विड्थ पता करना फ्रिंज विड्थ। ठीक है तो फ्रिंज विड्थ काहदे बराबर हो हुण ये सोचण की गल है फ्रिंज विड्थ की होगी
कहना सैपरेशन बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजिज कार द फ्रिंज इहदा विड्थ ऑफ द डार्क। हुण देखो आ डायग्राम नूं देखो ध्यान नाल, आ डायग्राम तुहानूं नज़र आ रही होगी, आ इस तरह की नज़र आता है, डार्क ब्राइट इस तरह नज़र आ रहा है। हुण जेकर मैंने फ्रिंज विड्थ नज़र जां इस तरह भी दिखा सकते हैं आप। जेकर मैं विड्थ पता करनी तो किवें पता करांगे, दो सेंटर डार्क सॉरी दो ब्राइट के सेंटर तो लेके सेंटर तक दी नाल लगदियां दो ब्राइट ने जिहड़ियां उन्होंने सेंटर तो सेंटर तक की मैं दूरी पता करना तो मेरे को काहदी आ जूगी विड्थ, वो आ जूगी डार्क की। जे डार्क टू डार्क पता कर ला तो वह आ जूगी ब्राइट की। तो अपने कोले देखो सैपरेशन बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कंजिक्यूटिव, तो पहले इथों कंपेयरिंग द विद द सिचुएशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंजिज वी फाइंड दैट डार्क फ्रिंजिज आर सिचुएटेड इन बिटवीन द ब्राइट फ्रिंजिज। हुण जे आ टर्मां नूं ध्यान नाल देखो, लैमड़ा डी अपॉन डी, 2 लैमड़ा डी अपॉन डी, 3 लैमड़ा डी अपॉन डी। हुण जिहड़ा आ पहली वैल्यू आई सी लैमड़ा डी अपॉन 2D, यह की है लैमड़ा डी अपॉन डी का अद्धा है। मतलब सेंटर वाले ब्राइट तो आ सेंटर ब्राइट वाला कितने सी 0, तो जी पहली ब्राइट फ्रिंज आई है वो सेंटर च की है, मतलब सेंटर वाला ब्राइट तो पहली जी ब्राइट फ्रिंज है आ सेंटर है, तो आ दे विचाले की है डार्क है, फिर अगली ब्राइट तो अगली ब्राइट के विचाले फिर डार्क होगा। अल्टरनेट आप कहते ब्राइट डार्क अल्टरनेट ने। तो जिहड़े डार्क की आ रहे ने आ वैल्यू आई है देखो पाथ डिफरेंस की, वो की है अद्ध के बराबर है, दो जिहड़ियां ब्राइट फ्रिंज ने वो अद्ध के बराबर है। ठीक है, तो यह मतलब जो फ्रिंज विड्थ कढ़नी है मैंने तो दो ब्राइट के विचकारली दूरी कढ़ लो, वो साडे कोल डार्क की विड्थ आ जू, दो डार्क के विचकारली दूरी कढ़ लो वो साडे कोल काहदी आ जूगी ब्राइट की विड्थ आ जूगी। तो बीटा विड्थ नूं आपां लिखांगे बीटा, तो बीटा काहदे वास्ते कढ़ रहे पहला मैं डार्क वास्ते, XN मतलब X वाला ब्राइट तो उस तो एक पहला वाला ब्राइट, X वाला ब्राइट सॉरी N वाला ब्राइट तो एक उस तो पहला वाला ब्राइट। तो की वैल्यू पर बनूगी देखो हम ध्यान नाल, X की वैल्यू कितनी है आ है N ते, ये N4 है, N लैमड़ा D अपॉन स्मॉल d माइनस N-1 वास्ते की होगी N-1 लैमड़ा D अपॉन D। सॉल्व करो N लैमड़ा D अपॉन D माइनस N लैमड़ा D अपॉन D माइनस माइनस प्लस लैमड़ा D अपॉन D आ गए आपस च कट, तो बीटा बराबर आ गया लैमड़ा D अपॉन D, इन्नी आ गई जी। हुण आपां कढ़दे हैं ये तो सी डार्क दी, हुण आपां ब्राइट वास्ते कढ़ो। ठीक है कि XN डैश, मैं X डैश क्यों लिया ये वास्ते लिया डैश, जब आप डार्क की कढ़ी सी ना डार्क का पाथ पोजीशन कढ़ी सी तो वो वास्ते डैश लाना सीगा, वो भुल गए तो डैश लिया X डैश N-1। हुण आ है वैल्यू N वास्ते 2N-1 लैमड़ा D अपॉन 2D। हुण N-1 वास्ते की होगा 2N-1 माइनस 1 लैमड़ा D, N की जगह तो मतलब N-1 भरता अपने। ठीक है, हुण इनू सॉल्व कर लो, खोल लो इनू 2N-1 लैमड़ा D अपॉन 2D माइनस इनू ओपन करो 2N माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, लैमड़ा D अपॉन 2D। हुण जे आपां ओपन कर लीए सारे नूं, नीचे सांझा है सेम है 2D है 2N-1 2N लैमड़ा D माइनस लैमड़ा D माइनस माइनस एलसीएम सांझा आ गया ना, नीचे सेम है तो एलसीएम सेम आ जाऊगा, मल्टीप्लाई करो लैमड़ा D 2N लैमड़ा D माइनस लैमड़ा D
माइनस 2n लैमड़ा डी माइनस माइनस प्लस होंदा है -3 माइनस माइनस प्लस प्लस लैमड़ा डी। ठीक है जी। उस तो बाद साडे कोल की है पूरे 3 आना सीगा, आ हो गया आपस कैंसल, माइनस लैमड़ा डी 3 लैमड़ा दी, एक घट गया 2 लैमड़ा डी बच गया अपॉन 2d, 2 नाल 2 कट गया तो बच गया लैमड़ा डी अपॉन डी, यानी कि बीटा डैश इनू नाम देवांगे बीटा डैश इज इक्वल टू लैमड़ा डी अपॉन डी। तो ध्यान नाल देखो तुसीं सॉल्व करने बाद बीटा की वैल्यू तो बीटा डैश की वैल्यू दोने सेम आए ने। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि जिन्नी विड्थ ब्राइट दी है उन्नी ही डार्क दी है। फ्रिंज विड्थ दे विच कोई फर्क नहीं हैगा फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजिज, पर कदों इफ वी आर यूजिंग मोनोक्रोमैटिक लाइट, मतलब सिंगल फ्रीकुएंसी वाली सिंगल कलर की लाइट आप जो यूज़ करते हैं तो सारिया फ्रिंजिज ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ही विड्थ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ठीक है, तो इस तरह का साढ़े को पैटर्न बन जाता है। ओके, फरदर कहता जिथे अपने को कंस्ट्रक्टिव आप कल किया सी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी उत्थे अपने को इंटेंसिटी आई सी A प्लस B का होल स्केयर कॉन्सटेंट है। तो सारिया जिहड़ियां जिन्नियां भी ब्राइट ने फ्रिंजिज ने वो सारिया इक्को जिन्नियां ब्राइट ने। सिमिलरली आर मिनिमम आप कल किया सी A माइनस B का होल स्केयर इज इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि A बराबर B है जे सिंगल लाइट है, सिंगल फ्रीकुएंसी लाइट है। तो सारिया डार्क की इंटेंसिटी कितनी है 0, मतलब ब्राइट बहुत ज़्यादा ब्राइट, डार्क सारिया बिल्कुल नेरा। ठीक है, उस तो बाद फिगर जी कहना 6.12 शो दैट द इंटेंसिटी ऑफ द डबल स्लिट एक्सपेरीमेंट पैटर्न एज ए फंक्शन ऑफ फेज डिफरेंस फाई बिटवीन द वेव एट स्क्रीन द हॉरिजेंटल सॉलिड लाइन रिप्रजेंट I0, या हॉरिजेंटल आ वाली देखो लाइन आ एक लाइन बनाई हुई है तो ये तो रिप्रजेंट कर रही है I0, मतलब यूनीफॉर्म इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन वैन वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड। जे आप एक स्लिट को कवर कर दिए तो इस इंटेंसिटी की चमक आ जूगी स्क्रीन के उपर, मतलब वो पर सानू फ्रिंज नहीं दिखणगियां, कल्ली चमक दिखूगी। ठीक है, नोट दैट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी I वेरीज फ्रॉम 0 एट फ्रिंज मिनिमा टू 4I0 एट फ्रिंज मैक्सीमा। पर जो दोने स्लिट ओपन होंदियां ने तो साडे कोल की बन गई, साडे कोल फ्रिंजिज बन गई ब्राइट डार्क। तो मिनीमा के उपर इंटेंसिटी 0 है तो मैक्सीमा तो इंटेंसिटी कितनी है सिंगल स्लिट के मुकाबले 4 गुणा। 4I0 का मतलब की है कि सिंगल स्लिट की जी एवरेज इंटेंसिटी सी उहदे नालों 4 गुणा इंटेंसिटी ब्राइट की होंदी है, उत्थे 4 गुणा ज़्यादा चमक होंदी है। इफ द वेव्स फ्रॉम द टू सोर्सिज वर इनकोहिरेंट दे वुड नो फ्रिंज पैटर्न एंड द इंटेंसिटी वुड हैव बीन यूनीफॉर्म वैल्यू 2I0 फॉर आल द पॉइंट ऑन द स्क्रीन। कहता पर जेकर जे सोर्सिज कोहीरेंट ना होण इनकोहीरेंट होण तो स्क्रीन सारी दे उपर की आ जाऊगा यूनीफॉर्म ल्यूमिनस आ जाऊगी, मतलब सारी स्क्रीन चिट्टी हो जाऊगी। तो इंटेंसिटी कितनी होगी 2I0, वो तो होनी हो है, एक सिंगल स्लिट करके I0 है तो 2 करके कितनी हो जाऊगी 2I0 हो जाऊगी, पर उससे सानू कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखता हैगा। ठीक है, तो साडे को लास्ट टॉपिक उस तो बाद आ गया कंडीशन फॉर द सस्टेनेबल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कि साडे को जेकर सस्टेनेबल पक्के तौर पर सानू चाहिए इंटरफेरेंस चाहिए की कंडीशन चाहिए ने। टू सोर्सिज ऑफ लाइट मस्ट बी कोहीरेंट, कि जो आप लाइट सोर्स यूज़ कर रहे हैं वो कोहीरेंट होने चाहिए ने, मतलब उन्होंने लाइट कंटीन्यूज आए, सेम वेवलेंथ या सेम फ्रीकुएंसी की आए, या तो उन्होंने कॉन्स्ट फेज डिफरेंस 0 हो या कॉन्सटेंट फेज डिफरेंस हो। फिर टू सोर्सिज शुड बी स्ट्रोंग विद लीस्ट बैकग्राउंड, मतलब जी लाइट आ रही है वो ज़्यादा आनी चाहिए, बैकग्राउंड घट हो स्ट्रोंग होने चाहिए ने। एंपलीट्यूड ऑफ द वेव फ्रॉम द टू सोर्सिज शुड बी परफेक्टली इक्वल, A तो B की वैल्यू एंपलीट्यूड की वैल्यू की होनी चाहिए है बिल्कुल बराबर होनी चाहिए है। टू सोर्सिज शुड परफेक्टली भी मोनोक्रोमैटिक, सेम फ्रीकुएंसी जी हैगी लाइट आप यूज़ करनी है। कोहीरेंट सोर्सिज मस्ट बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, स्मॉल d की वैल्यू घट तो घट होनी चाहिए है। टू सोर्सिज शुड बी पॉइंट सोर्सिज और वेरी नैरो सोर्सिज, जी अपने A तो B स्लिट लईयां ने वो जिन्नियां हो सकन उन्नियां छोटियां होनियां चाहिए ने। ठीक है, फिर लास्ट आ गया फ्रिंज शिफ्ट। इफ द कहना ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड थिकनेस T
is introduced in one of the path of the interfering wave, optical path length of the path will become mu t instead of t, increasing by mu minus 1t। की मतलब कहना जिमें आ देखो आ डायग्राम देखो अपने को एक स्लिट S1 है एक S2 है दोनों तो एक एक वेव चल के आ रही है वो करके सामने इंटरफेरेंस बन रहा है। हुण मैं की करता एक स्लिट तो जी वेव आ रही उसके रस्ते के की करता कि ट्रांसपेरेंट शीट रखती ट्रांसपेरेंट शीट जिहदा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स म्यू है। हुण देखो जो लाइट एक मीडियम तो दूजे मीडियम के विच एंटर करती है आपां पढ़ चुके इस यूनिट के विच तां लाइट बैंड हो जाती है। किन्नी बैंड होगी वो डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडैक्स से। जिन्ना रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ज़्यादा होगा उन्नी वध बैंड हो जू जिन्ना घट होगा तो उन्नी घट हो जूगी। तो इन्हें ही गल कही है कि जेकर असी एक म्यू रिफ्रैक्टिव इंडैक्स वाली तो टी थिकनेस वाली अपन एक शीट इंट्रोड्यूस करती एक वेव के रस्ते तो साडे कोल जिहड़ी ऑप्टिकल पाथ लेंथ सी तो रस्ते की लंबाई जिहड़ी वो चेंज हो जूगी। किन्नी हो जूगी म्यू टी हो जूगी इनस्टैड ऑफ टी टी की थां ते म्यू टी जिहड़ा हैगा रस्ता जिहड़ा ओहदा वध जूगा। तो किन्ना वध गया म्यू टी दे विचों टी घटा दो तो म्यू टी साझा आ गया म्यू माइनस 1 इन्ना रस्ता जिहड़ा वध जूगा। इफ द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर फ्रिंज मान लो पहला किसी फ्रिंज की पोजीशन कितनी है एक्स डी अपॉन डी या डी अपॉन डी इंटू डेल्टा एक्स ये पोजीशन है। द न्यू पोजीशन कितनी हो जूगी वो डी अपॉन डी डेल्टा एक्स के की नाल जुड़ जूगा इन्नी दी लेंथ चेंज हो गई सी। आ की सीगा पाथ डिफरेंस है ना आ पाथ डिफरेंस पहला तो डेल्टा एक्स सीगा हुण पाथ डिफरेंस कितना हो गया जिन्नी लेंथ होर वध गई म्यू माइनस 1 इंटू टी ये भी बिच नाल मतलब कि ऐड हो गया। तो शिफ्ट कितनी आ गई पहला आ वाली पोजीशन सी हुण आ वाली पोजीशन है तो दोनों चो घटा दो बाद वाली चो पहला वाली घटा दो इन्ना शिफ्ट आ गया। मतलब जिहड़ी फ्रिंज है वो अपनी जगह तो की कर गई शिफ्ट कर गई। हुण आ डायग्राम देखो पहला सेंटर दे विच है जिवें इत्थे रखिया तो पहला एक पासे 1.5 है दूजे पासे भी 1.5 है। हुण इहदे विच इधरले पासे रखिया तो 2 उपर हो गई एक नीचे हो गई। मतलब फ्रिंज अपनी जगह बदल गई फ्रिंज की जगह की होगी चेंज होगी कादे करके पाथ डिफरेंस दे चेंज होने करके। सिमिलरली मैं दूजे च रखता तो इत्थे भी फ्रिंज की की होगी पोजीशन चेंज होगी। इनू बोलते हैं फ्रिंज शिफ्ट। क्यों चेंज हुई आ चेंज हो गया पाथ डिफरेंस ठीक है कादे करके रिफ्रैक्शन होने करके। समझ लगी गल। तो ये जो साडा यह चैप्टर है वो खत्म हो गया। इसनूं चंगी तरह समझ लो क्योंकि इंपॉर्टेंट आर्टिकल ने पेपर 100% आएंगे। एक बार नहीं पता लग गया तो वीडियो 2 बारी 3 बारी चला के देखो फिर भी नहीं पता लगता तो मैनू पूछ लो।